Welcome back, students. Today, class 9, section A. That question already came. You can check your answer from here, right? That how many questions you have done correctly in the examination, right? So, first 20 objective question I'm going to discuss. The first question, if you will see, then logical operator, which is a unary operator. Unary operator, student, you know that which works with one operand, right? Which works with one operand. So there is and is there, so which is binary operator, greater than binary operator, or binary operator. Then what will be the answer? Answer will be D, none. Okay, because not is the logical operator, which is also known as unary operator. Okay, so not is not there, so answer will be none. Now the second question is multiple branching statement of Java. So what is the multiple branching statement? No doubt switch is the answer, right? Multiple branching switch. Now the sort data type occupies in bit. Just remember, sort occupied 2 byte memory, right? 2 byte. So if you will see, 1 byte equals to 8 bit. 8 bit. So 8 bit. So 2 byte equals to 16 bit. 16 bit will be the answer. Okay. Question number 4. Default delimiter. Delimiter means when you are going to enter the values, right? So what you can give to enter the multiple values at same time, we use a space. So default delimiter is white space. Okay, default delimiter is white space. Okay, for the scanner class, which of the following is not a Java keyword? Say switch is a keyword. I'm not talking about the capital S, it will be a small. Okay, it's a typing mistake, you can say, in the examination. So S will be a small, then it will be a keyword. Default is also a keyword used with the switch case. Character is a class but act as a keyword. So which is the answer? Answer is identifier. Identifier is a concept, not a keyword. Okay, now next question we have, what is the default value of boolean? Student, you remember the default value of boolean is false. Okay, default value of boolean is false. If a is 10, b is 15, then what will be the value of b plus equals to? So see, prefix, a is 10, so here it is 11 now, right? Now plus b is what? B is 15. B is 15. So 15 modulus 3. 15 modulus 3, the remainder is 0. I think this question I have written wrong here, but if you will see the question answer, 15 modulus answer will be 28 actually in your examination. Okay, I have checked the paper, 28 will be the answer. But here you see what will be the answer. So remainder will be 0. So 11 plus 0, 11. And B is what? 15. So 15 plus 11, 26 coming from this particular question. Okay, this question is wrong, I have written here. So in the exam, the answer will be 28. Now come to the question number 8. You have used wrong punctuation. Wherever the grammatical mistakes will be there, no, it directly will go to the syntax error. Okay, no problem at all. Which features, कौन सा फीचर oops indicate code reusability? जहां पे code reusability का बात आता है, आंख बंद करके इनहेरिटेंस में जाना है, ठीक है? आप सेक्शन, एक क्लू याद रखना, आप सेक्शन अगर बोला तो याद रखना है इसको कि एक रिलेवेंट इंफॉर्मेशन देगा, हाइड करेगा कॉम्प्लेक्सिटी को। इनकैप्सुलेशन बोलेगा तो एक पैकेज ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट, वेयर group of information, you can say data and function together, right? Binding of data and function together, that is encapsulation. Polymorphism, one function multiple purposes, so that is polymorphism. Okay, so directly if you are talking about the reusability, the answer will be inheritance. Okay, now character data type cannot store value. See, in character, a special character can be stored like plus, hash, anything, asterisk, anything you can store. Digit we can store 0 to 9. I told you 0 to 9 will be considered as a character if you are writing this in the single quotes. Okay, letters already, you know that letters a b c d can be stored in the character. So what we can store, what we cannot store, what we cannot store, just remember this, string we cannot store in the character, right? Next question. The number 100.00 will be stored with which data type? See, both is used for that. Float also, double also. This first letter will be a small, okay? For float also and double also. But if you will see 00, see the after decimal two digits are there. So if
till 6 or till 7 digit. If till 6 also you can consider, till 6 to 7 digit will be there, you can go with the float. And more than that, after point, more than that, suppose 8 digits are there after point and both options are there, float and double, then you will go with the double. So for this particular question 100.00, you will press float. Float is the right answer. Okay, literal can be of which of these data types? Okay, literal can be of which of these data type? Integer literal possible, boolean literal possible, float literal possible, all of these will be the answer. Okay, D is the right answer. Literal means constant. So suppose you are writing 4, so 4 is the integer literal. If you are writing here true, so true एक boolean literal है, 0.5 a float literal हो गया. तो सारा possible है, possible, all are possible for the literals. Okay, now come to the ternary operator. Ternary operator conditional operator दूसरा नाम याद रखना, कंडीशन देने के काम में यूज होता है. ठीक है, इफ एल्स के जगह पे हम लोग यूज करते हैं क्या, टर्नरी ऑपरेटर, इसलिए कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं इसको. ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट मैट डॉट पाव 1/2. देखो 1/2 ये सिंटेक्स एरर है, 1/2. तो 1/2 जब भी रहेगा ना, कंपाइलर विल कंसिडर दिस जीरो, हमेशा याद रखना. लेकिन यही अगर सही तरीके से लिखा जाए 1/2, 1.0/2.0, देन कंपाइलर विल कंसिडर इट्स अंडर रूट, राइट, under root. But now it will not consider under root. So 0. So 144 to the power 0, the value will be 1. And plus a square root of 144, you know, 12. So 12 plus 1, 13. So 13 is the answer. याद रखना इसको. ठीक है, now system dot out dot mat dot seal. seal का मतलब हायर वैल्यू हुआ, तो -4 और -5 दोनों में हायर वैल्यू कौन सा है, हायर वैल्यू -4 है सर. तो आगे बढ़ो, प्लस -5, इसमें लोअर वैल्यू कौन सा है, तो लोअर वैल्यू -6 है ना, क्योंकि ये -5.5 किसके किसके बीच में है, तो -5 और -6 के बीच में आ रहा है. ठीक है, तो -5 और -6 के बीच में आ रहा है, तो लोअर वैल्यू क्या हुआ, -6. तो -4 और प्लस माइनस, तो -4 और प्लस माइनस -6, तो -4 -6 -10 विल बी द आंसर. ओके, आगे बढ़ो. मैट डॉट मीन -20 -23, तो माइनस में है तो 23 विल बी द आंसर. और यहाँ पे प्लस है और 23 है यहाँ पे, लेकिन एबीएस, एबीएस का काम क्या है, इसको रिवर्स कर देगा. ये जो प्लस है, ये माइनस है, तो इसको प्लस कर देगा. ठीक है, ये माइनस को ही केवल प्लस करता है, ऐसा नहीं कि प्लस को ही माइनस कर देगा, नहीं, केवल ये एब्सोल्यूट वैल्यू देगा. तो 23 आ गया, तो 23 और 23 कैंसिल हुआ, आंसर क्या आ गया, 0 आ गया. आंसर 0 कहाँ है, 0.0, तो डबल वैल्यू देगा. व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग. चलो यहाँ पे सारे लोग कंफ्यूज किया है, तो लोग है ना, देखो ये सेमीकोलन मिस्टेक से नहीं दिया गया है, इंटेंशनली हम दिए हैं यहाँ पे. ठीक है, ये नल लूप हो गया तेरा, दिस इज कॉल्ड नल लूप. ओके, जैसे ये नल लूप हुआ ना बाबू, ये बॉडी लूप के बाहर हो गया, ये इज नॉट पार्ट ऑफ दिस लूप, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ दिस लूप, राइट. अगर ये पार्ट लूप का नहीं है, तो ये तो एक ही बार एग्जीक्यूट करेगा, कब, जब ये लूप फॉल्स होगा. तो कितना बार में फॉल्स होगा, 0 चला, 1 चला, 2 चला, 3 हुआ आई का वैल्यू, तो ये फॉल्स हो गया. जब फॉल्स हुआ तो बाहर आया, तो प्रिंट कर दिया 3, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 3 हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि ये सेमी कॉलन इसको प्रिंट नहीं करने दे रहा वैल्यू, नहीं तो क्या होता प्रिंट 0 1 2, अगर ये सेमी कॉलन को हटा दिया जाए तो आंसर आ जाएगा 0 1 2. ठीक है, लेकिन ये आंसर नहीं है, आंसर क्या है, 3 है आंसर इसका, इंटेंशनली दिया गया. बोर्ड में 100% एक क्वेश्चन रहना ही रहना है इसका. ठीक है, आगे बढ़ो. विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टैक्टिक्स मैक्सिमम स्टोरेज वैल्यू, तो याद रखना सबसे बड़ा तो डबल ही होता है. ठीक है, फाइंड सम ऑफ होल नंबर. होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, तो 0 से 5 तक अगर लूप चला तो कितना बार चलेगा, 6 बार. ठीक है, नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0, तो 0 to 5, 0 to 5 6 टाइम्स. ठीक, और ये कंडीशन 5 इज इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू हुआ, तो जैसे ही ये ट्रू हुआ तो फर्स्ट पार्ट एग्जीक्यूट करेगा. ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या है, 5 + 5 10, सो आंसर इज 10. समझ में आ रहा है. और अगर ये कंडीशन फॉल्स होता तो 0 एग्जीक्यूट करता, तो आंसर क्या आ जाता, 0. लेकिन अभी तो ये कंडीशन ट्रू है ना, तो 5 इज इक्वल टू 5. ठीक है, तो मैच करो, तो लोग 20 में कितना स्कोर किया, कमेंट सेक्शन में बताना है सारे को, है ना. अब बाबू ये देखो, ये क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 2, 2 मार्क्स का. देखो ये जो साइन है ना, वैसे नहीं दे दिया गया है ये, इसका मतलब होता है मैट डॉट एबीएस. तो जो भी लिखना है ना, वो मैट डॉट एबीएस के अंदर में लिखना है इसको. ठीक है, ये जो
दिख रहा है तुमको लाइन, ये मैट डॉट एबीएस है, ठीक है। तो जब भी लिखेगा तो मैट डॉट एबीएस, फिर एक्स इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स इंटू वाई प्लस वाई इंटू वाई, ठीक है। सील ऑफ फ्लोर हायर वैल्यू एबीएस फॉर द पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। इसको लिखना है किसमें, डू वाइल में। तो डू वाइल का सिंपल सा बोले थे कि ये वाइल को हटाओ यहाँ से, इसको हटाओ, यहाँ पे डू लिखो, ठीक है। और सारा चीज वही रहना, तो केवल ये वाइल को उठा के यहाँ ले आओ, इस वाइल को उठाओ यहाँ से और यहाँ पे लेके आ जाओ, बस। और कोई चेंजेस नहीं होगा। लेकिन तुम लोग क्या किया, ये बाहर वाला को भी अंदर कर दे रहा है, अंदर वाला को बाहर कर दे रहा है। तो करना क्या है, इस वाइल को यहाँ से हटाना है भाई, और ये की जगह पे डू लिखना है, और ये जो वाइल जो हटाया है उसको लास्ट में कर दो, बात खत्म। डिफॉल्ट कब यूज करते हैं, व्हेन नो केस स्टेटमेंट विल मैच, देन वी यूज डिफॉल्ट स्टेटमेंट, राइट। हम्म, ठीक है। तो ये तो पता ही है तुम लोग को। इसका आंसर कैलकुलेट किया, -24 आया था। देख लेना एक बार कैलकुलेट करके। टोकेंस क्या, स्मॉलेस्ट यूनिट इन जावा। कोई भी चीज क्लास हो गया, इंट हो गया, कोई भी है, और इंटरचेंज करने का बस 3 लाइन लिखना था इसका। ए इक्वल्स टू ए प्लस बी, फिर लिखना था बी इक्वल्स टू ए माइनस बी, और फिर लिखना था ए इक्वल्स टू ए माइनस बी। बस यही 3 लाइन विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, ठीक है ना। व्हाट डू यू मीन बाय इनफाइनाइट लूप? इनफाइनाइट लूप क्या होता है, जो जिस नेवर एंडिंग लूप हो गया, जो कभी स्टॉप ना हो, ठीक है। एग्जांपल ऑलरेडी वी हैव डिस्कस। शेड्यूल टर्नरी ऑपरेटर तो क्या बोले थे कि इफ को हटाओ और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स दे दो, उसके अपोजिट साइड में क्वेश्चन मार्क्स दो, और ये टी यहाँ पे है और टी यहाँ पे है, तो ये कॉमन हो गया, कॉमन हो गया तो टी को यहाँ पे उठा लो पहले, ठीक है। और 0.0 यहाँ पे देखो, ये तो इसी तरह से लिखना है एक लाइन में। क्वेश्चन मार्क्स हो गया, फिर 0.0, क्योंकि टी इक्वल्स तो निकल चुका है बाहर। अब एल्स के जगह पे क्या लिखना है, इस एल्स को हटाना है, और एल्स के जगह पे दो ठो, एक तो कॉलन दे देना है, फिर इस इफ को हटाना है, इस इफ को हटा करके इसके अपोजिट साइड में क्वेश्चन मार्क्स दे देना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मार्क्स दे दिया, बाकी जैसा था वैसे ही रहेगा सारा, कोई चेंजेस ही नहीं करना था इसमें, ठीक है ना। और फिर से एल्स है, फिर से इस एल्स को हटाना है, जहां पे दिख रहा है तुमको एल्स वहां कॉलन दे दो, जहां पे इफ दिख रहा है वहां क्वेश्चन मार्क्स दे दो उसके अपोजिट में। टी इक्वल्स ऑलरेडी निकल चुका है, तो बचा क्या, ये बचा क्या। एंट्री कंट्रोल लूप, एग्जिट कंट्रोल लूप, इट चेक द कंडीशन इन द बिगिनिंग एंड इट चेक द कंडीशन एट लास्ट। ये है 40 मार्क्स, है ना। इसमें इतना सारा गलती किया तो लोग, ऑल द बेस्ट, बताना स्कोर।